Question number 41. A projectile is thrown at an angle beta with vertical. It reaches a maximum height h. The time taken to reach highest point of its path is. So it is very simple thing because we already know. What we know is, suppose ये हमारे पास horizontal है. This is inclination, right? So I'll not use this thing, otherwise you'll get confused. Anyways, so we have this as projectile which was projected at an angle of beta with respect to vertical. ये important है. A projectile is thrown at an angle beta with respect to vertical. तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज 90 माइनस बीटा, राइट? गुड. देन हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, और एक चीज हमको बोली है, और ये हमको बोला है, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट. इट इज वेरी वेरी सिंपल. सबसे पहले व्हाट यू शुड नो इज दैट दे आर आस्किंग यू अबाउट टाइम ऑफ एसेंट, वन थिंग, एंड मैक्सिमम हाइट h का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. इफ यू रिमेंबर ओके, इफ यू डोंट रिमेंबर प्लीज रिवाइज. h का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर angle of projection which is 90 minus beta by 2g. तो ये हमारे पास आ गया h is equal to u square sin of 90 minus beta is cos square beta upon 2g. मतलब हमको मिल गया u square cos square beta equal to 2gh. मतलब u cos beta is equal to under root of 2gh. कम से कम हमारे पास इतना तो है. अब आपको पता है एट हाईएस्ट पॉइंट, लेट अस से एट हाईएस्ट पॉइंट बी, एट हाईएस्ट पॉइंट what we know is Vy is equal to 0, but what we know is Vy is equal to Uy minus Gt. तो Vy 0 आ गया, तो 0 इक्वल टू Uy. Uy आपका है यहाँ पे u cos बीटा इन दिस केस, है ना, क्योंकि Uy क्या होता है, u साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज u cos बीटा बन जाएगा हमारे इस केस में. इसलिए हमने u cos बीटा की वैल्यू निकाली है. दैट वाज द रीजन फॉर फाइंडिंग आउट u cos बीटा माइनस gt, और ये t हमको फाइंड करना था. तो मुझे मिल गया यहाँ से t इज इक्वल टू u cos बीटा बाई g, and u cos beta you already have is under root of 2gh by g, so that is equal to under root of 2gh by g square, and that is equal to under root of 2h by g. ये मिल गया आपको time taken to reach the highest point, that is 2h by g under root. हमने क्या किया, हमने सिर्फ इतना किया. हमको पता होना चाहिए दिस थिंग, मतलब यहां से हमको मिल गया टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट एज u cos बीटा बाई g, राइट. तो पहले u cos बीटा चाहिए. बेसिकली टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज uy बाई g. uy is u sin of angle of projection. Sin of angle of projection is 90 minus बीटा, तो sin 90 minus बीटा is cos बीटा, तो uy मिल गया मुझे u cos बीटा. फिर u cos बीटा कैसे मिलेगा, h is equal to u square sin square 90 minus बीटा upon 2g, that is u square cos square beta upon 2g, that is equal to, इजी है, u square cos square beta equal to 2gh, तो u cos beta equal to under root of 2gh. तो u cos beta मिल गया, हमने t के इक्वेशन में डाल दिया, and you have time of
ascent, the time taken by the projectile to reach highest point. The question was very simple. Next, a body is projected with initial velocity u bar equal to 2i cap plus 2j cap. Horizontal range, देखो मैंने आपको बताया है, इफ यू रिमेंबर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यू एक्स एंड यू वाई, तो 2ux uy by g, मतलब फिर तो कुछ है ही नहीं, because if you remember this formula then you know 2 into 2 into 2 by g की वैल्यू 10 हो गया, फिर 2 into 2 into 2 that is 8, 8 by 10 is 0.8. तो इजी क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. The trajectory of a projectile in the vertical plane is y is equal to ax minus bx square, where a and b are constants and x and y are horizontal and vertical distances respectively of the projectile from the point of projection. ठीक है, बता देता हूं कि क्या है वो. ओके, the maximum height attained by the particle and the angle of projection from the horizontal are. Question is again simple. So, मान लो हमारे पास ये है projectile. At some instant of time, projectile is let us say here. तो ये जो distance होगा ये है y और ये जो distance होगा ये है x. This is what they are saying. That's it. आपको बोला है maximum height attained by the projectile and the angle of projection from the horizontal. So this is very simple. कैसे? You need to remember general or standard formula for trajectory of projectile. So we know that, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं. We know that for a projectile, so for a projectile y is equal to x tan theta minus, ये भी पता होना चाहिए आपको, g by 2u square cos square theta into x square. हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट, उसके लिए चाहिए थीटा. ठीक है, और हमें चाहिए प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो इसको बोलते हैं इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 and 2 what we see is that tan theta is a and g upon 2u square cos square theta is equal to b. So this is what we see. Now how do we find out h? हमारे पास h के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, that is equal to u square sin square theta by 2g. Okay, but I don't know what is sin square theta into u square. तो u square sin square तो पता नहीं है हमको, right? तो how do we solve here onwards? तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज है. मैं क्या करूंगा, मैं h और b को मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो I'll call this equation number 3, equation number 4, equation number 5. There are more than one method that exist. So what I am doing is I am multiplying 4 and 5. तो h into b is, h क्या है, u square sin square theta upon 2g. b क्या है, g upon 2 u square cos square theta.
तो यू स्क्वायर गया, जी और जी गया, तो मुझे मिला एच बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एज tan स्क्वायर थीटा बाई 4. But tan square theta is nothing but a square by 4. तो मुझे मिल गया h equal to a square by 4 times of b. A square by 4 times of b, that is the maximum height. और हो गया क्वेश्चन खत्म. क्यों? क्योंकि यहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a तो था ही, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आ गया आंसर. तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, गिवन इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के साथ कंपेयर किया है. तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से कंपेयर किया है. तो tan थीटा a मिल गया, तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ a, ये मिल गया. मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक ही होगा. अब देन हमको h का इक्वेशन पता है और हमको g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू b मिला है, इक्वेशन नंबर 4 मिला है बाय कंपेयरिंग 1 and 2. तो मैंने h और b को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वहां से मिल गया h इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4b. The question is really interesting, important and simple. सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है. Provided you know how to see things, how to fetch information from a given equation. Next, a boy is playing. A boy playing on the roof of a 10-meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle 30 with the horizontal. How far from throwing the ball from the throwing point will the ball be at a height of 10 meters from the ground? Sorry, because this is a joke. Why it is a joke? मतलब सिर्फ इतना है कि आपको क्या फाइंड करना है वो पूछा है. Okay, a boy playing on the roof of a 10-meter high building. इसका मतलब ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट है 10 मीटर. दिस इज व्हाट they are telling you. Okay, a boy playing on the roof of a 10-meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle 30 with the horizontal. So he throws a ball with initial speed u as 10 meter per second at an angle 30 degree. How far from the throwing point will the ball be at a height of 10 meter from the ground? इसका मतलब वो बॉल टेरेस से, रूफ से नीचे नहीं गिरा, तो रूफ टू रूफ. तो मतलब आपको क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो आपको पूछा है व्हाट इज रेंज इन शॉर्ट. तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर आस्किंग यू व्हाट इज रेंज, दैट्स इट. और रेंज आपको पता है, पता होना चाहिए. यू स्क्वायर देखो अभी आपके ऊपर है वापस से. इफ यू वांट टू राइट 2ux uy by g, or if you want to write u square sine 2 theta by g, is the same thing. Okay, so you can write down 2, you can write down u square sine 2 theta by g. इस केस में using this formula answer will be fast. u square, u की वैल्यू दी है 10, 10 स्क्वायर साइन ऑफ 2 into 30 मतलब साइन 60 बाई जी की वैल्यू दी है 10, एक 10 एक 10 कैंसल. साइन 60 इज रूट 3 by 2, तो रूट 3 by 2 into 10 मतलब 5 रूट 3. 5 into 1.73 something something turns out to be 8.66, क्योंकि 5 into 1.7 मतलब 5 into 1.5 is 7.5. 5 into 1.7 is greater than 7.5 मतलब 8.66 मीटर आएगा.
तो सिर्फ आपको पूछा था हॉरिजॉन्टल रेंज, सिर्फ घुमा घुमा के पूछा है, इतना ही है। दे आर आस्किंग यू हॉरिजॉन्टल रेंज बट बस घुमा के पूछा है। A body is projected at angle 45 to the horizontal with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। 45 डिग्री बोला मतलब आर मैक्स होता है, वेलोसिटी दिया है 20। If there is an acceleration in the horizontal direction, this is where the things have changed. अब तक हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं है। अब इन्होंने बोला है if there is acceleration in the horizontal direction of 2 meter per second square, then calculate range. So this is where you need to think how to solve this question. Okay, in any case, question is simple and there are more than one methods of solving this question. So let me tell you one method, other method you can work out by yourself. सबसे पहले, when you talk about horizontal projectile, sorry, when you talk about oblique projectile motion, ground to ground की बात जब करते हैं, there is one physical parameter, जितने भी हमने पैरामीटर सीखे हैं बेसिकली, what we have learned is range, what we have learned is height, what we have learned is time of flight. अगर आपको याद है, मैं लिख रहा हूँ रेंज 2ux uy by g। उसके बाद मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरे के पूरे ट्रेजेक्टरी, देखो मैं अगर h लिख देता हूं, मैं लिखूंगा uy स्क्वायर बाई 2g, करेक्ट। लेकिन हाइट, ये पूरा ट्रेजेक्टरी खत्म नहीं हुआ है ना, height is at half the trajectory, that is why I don't talk about h here. Time of flight 2u sin theta by g, मतलब 2uy by g, राइट। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो या नहीं हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्या यूआई है ना, यूएक्स तो नहीं है उसमें, पर रेंज डिपेंड करता है, करेक्ट। तो सच क्वेश्चंस, बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग यू नीड टू थिंक कि हमको बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब पूरे के पूरे मोशन की बात की है, इन बिटवीन नहीं, ग्राउंड से आया ग्राउंड पे वापस पहुंच गया। तो व्हाट पैरामीटर्स आई नो फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, आई नो ओनली टू थिंग्स, एक है रेंज, दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं रेंज नहीं यूज कर सकता हूं क्योंकि रेंज फाइंड करना है। दूसरा रीजन ये है कि रेंज एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, और ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इट वाज अंडर अजम्पशन दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन, मतलब कोई भी फोर्स नहीं है, राइट। पर यहाँ पे तो बोला है, मतलब आई कैनॉट यूज दिस फॉर्मूला इन शॉर्ट, बट देयर इज टाइम ऑफ फ्लाइट which basically does not depend on x component. So t is equal to 2 uy, मतलब u sin theta by g। मैं एक काम करता हूं, पर ऐसे लिखता हूं, this does not depend on x component, does not depend on horizontal acceleration, तो t इज इक्वल टू यू आई क्या है, u sin थीटा बाई जी, t टाइम ऑफ फ्लाइट t 2, u is 20 sin 45 बाई जी की वैल्यू 10। तो मुझे ये मिल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग 40 बाई रूट टू, 40 बाई 10 इज 4, नीचे आएगा रूट टू, तो 2 रूट टू सेकेंड मिल जाएगा मुझे।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2√2 सेकेंड. नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज r, याद होगा आपने, हमने कैसे निकाला था इसको, हुआ था ux इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर. फिर हम लोग तब बोलते हैं कि ax इज 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है. फिर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ax इज 2 बोला है, इसलिए लिखना पड़ेगा, राइट. तो r इज इक्वल टू, मतलब सिर्फ यही चेंज है कि यहाँ पे ये 0 नहीं होता, दैट इज ऑल. ओके, तो r रेंज r इज इक्वल टू ux इज u cos थीटा t प्लस हाफ ax t स्क्वायर. तो u is 20 cos of 45. Time of flight is 2√2 plus half. A is 2 and time of flight is 2√2 का square again. तो this is equal to just a minute. Let me make some space. Very good. तो I don't know ये 2 कहाँ से आया, ये t का स्क्वायर था. ओके, so 20 cos of 45 1 by root 2, 2√2 plus ये 2 गया, 2 square is 4 into 2 is 8, ये भी गया, 40 plus 8 is 48 मीटर, 48 मीटर. सिंपल, बहुत सिंपल है. हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर हमने s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर एक्स कंपोनेंट पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि रेंज x डायरेक्शन में होता है इसके लिए. तो क्या डिफिकल्ट था? नथिंग एट ऑल, सिंपल सिंपल. इट वाज सिंपल सिंपल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle starts flying in xy plane with a speed. तो आपको वापस से इनिशियल स्पीड दे दिया आपको 2i कैप plus 5x j cap. Initial position of the particle was the origin of the plane. The trajectory of the particle is represented by the equation. Very good. So if you remember, हमने जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव किया था, वैसे ही हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल डिराइव कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे? सबसे पहले, डू वी नो व्हाट इज x component of velocity? Yes, we know x component of velocity is, आपको पता है मैं vx क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में vx is equal to ux, मतलब ये होता है dx by dt. आपको पता है वेलोसिटी इज dx by dt, दैट इज इक्वल टू 2. क्यों? क्योंकि मैंने इसको लिखा u बार इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एज ux i कैप प्लस uy j कैप, राइट. गुड. तो आपको है दिया है vx which is ux which is dx by dt equal to 2. Similarly, you are given vy is equal to uy is equal, not uy, sorry, it changes, but in any case you have been given uy is equal to dy by dt, that is equal to 5x. आपको मिल गया dx by dt, आपको मिल गया dy by dt. तो dx by dt मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं क्या dx इक्वल टू 2 dt? यस. और मैं यहां से लिख सकता हूं क्या dy is equal to 5x dt? yes. So we can write this thing. Okay, good. So how to proceed now? इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे, दैट इज
a question. You have to integrate. तो dx is equal to 2 dt को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, ओके, तो मुझे मिलता है इंटीग्रेशन dx, 2 कांस्टेंट था इंटीग्रेशन के बाहर, तो 2 इंटीग्रेशन dt, dx का इंटीग्रेशन होता है x, t का होता है dt का होता है t, तो x इक्वल टू 2t आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 3, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन 2, therefore मुझे मिल जाएगा dy is equal to 5 into x that is 2t dt, मतलब मुझे मिल जाएगा dy is equal to 10t dt। अब मैं y को इंटीग्रेट करूंगा, तो मैंने पहले यहाँ पे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग, फिर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग। और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज में बता चुका हूँ बहुत बार, और बुक्स में भी है, यू हैव टू गो थ्रू the modules that I gave you. So integration will be this, 10 constant है t dt, dy का इंटीग्रेशन होता है y, 10 t का इंटीग्रेशन होता है t square by 2, मतलब ये मिल गया 5t square। ओके, इक्वेशन नंबर 4, तो y is equal to 5t square ऐसा आ गया हमारे पास। अब what I will do is, मुझे पता है x इक्वल टू 2t है, तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू 5 इंटू 4t स्क्वायर डिवाइड बाई 4, मतलब सिर्फ 4 एडजस्ट कर लिया, तो y इज इक्वल टू 5/4, ये है x का स्क्वायर, 4t इज 2t स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो ये है 2t का स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू 5/4 इंटू एक्स स्क्वायर, 5/4 इज 1.25, तो y इक्वल टू 1.25 एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने, हमको इनिशियल वेलोसिटी u बार इक्वल टू 2i कैप प्लस 5xj कैप दिया था, मतलब u बार हमको पता है इट इज ux i कैप प्लस ui j कैप, तो हमको ux मिल गया दैट इज इक्वल टू 2, but ux is dx by dt, by definition of velocity derivative of distance with respect to time is velocity, तो ux is dx by dt that is 2, तो dx इक्वल टू 2dt, मतलब इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर दिया तो x इक्वल टू 2t मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। सिमिलरली uy which is dy by dt which is 5x, तो dy इक्वल टू 5x dt, मतलब इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, बट x is 2t, तो फिर dy इक्वल टू 10t dt मिल गया, हमने उसको भी इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू 10 इंटीग्रेशन t dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, इंटीग्रेशन ऑफ t dt इज t स्क्वायर बाई 2, तो आपको मिल गया y इक्वल टू 10 t स्क्वायर बाई 2, मतलब y इक्वल टू 5t स्क्वायर। सिर्फ मैंने 4 एडजस्ट कर दिया है, तो y इक्वल टू 5/4 इंटू 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर इज 2t होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू 5/4 x स्क्वायर एंड 5/4 इज 1.25, तो y इक्वल टू 1.25 का स्क्वायर आपको मिल गया, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इन दिस केस, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, और ज्यादा लेवल हाई भी नहीं है, ज्यादा लेवल लो भी नहीं है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। 47th, the ceiling of a tunnel is of 5-meter height. Ceiling of a tunnel, टनल पता होगा, कभी ट्रेन से कभी गाड़ी से जाते वक्त ऐसा एक गुफा टाइप आ जाता है, समथिंग लाइक दिस, ओके, तो यू नो दिस, ऐसा पता होना चाहिए। तो ऐसा टनल है बेसिकली, इसका सीलिंग जो है वो मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज 5 मीटर इन हाइट,
What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 20 meter per second can go without hitting the ceiling of the tunnel? Very good question again. मतलब सपोज मैं मान लेता हूं विदाउट हिटिंग, मतलब ऐसा है कि यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो वो मैक्सिमम 5 मीटर जा सकता है. ओके, सो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड एंड इट कैन गो मैक्सिमम टू हाइट ऑफ 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर से थोड़ा भी ऊपर गया तो इट विल हिट द सीलिंग. मतलब एच दिया हुआ है. ओके, तो हमको एच पता है. व्हाट इज एच? इज सिंपल. एच कैसे निकालते हो आप? आपको पता है एच इज यू वाई स्क्वायर बाई टू जी. यू वाई स्क्वायर बाई टू जी. आपको पता है यू वाई इज यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी. राइट, तो h की वैल्यू दी है 5. तो व्हाट आई हैव इज h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी. h की वैल्यू है 5 मीटर, u की वैल्यू है 20 स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 10. ये नीचे 20 ऊपर 20 कैंसल, ये बाकी आपका 5/20 मतलब 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आपको मिल गया साइन थीटा एज 1/2, मतलब थीटा एज 30 डिग्री बेसिकली. व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? व्हाट इज आर? यहां से थीटा तो मिल गया आपको 30 डिग्री, थीटा 30 मिल गया. फिर आप बोलोगे r is u square sin 2 theta by g. Fine. What is u? Again 20 का square sin of 2 into 30 degrees by g की वैल्यू 10. तो sin of 60 है ये, तो 20 square is 400, sin of 60 is √3/2 और नीचे 10 ऑलरेडी है, तो 400/22 400/20 is 20 again. So that is 20 √3. 20 √3 meter is the maximum range that a projectile thrown inside a tunnel of 5 meter height can go without hitting the ceiling of the tunnel. Good. मतलब घुमा फिरा के आपको h की वैल्यू दी थी यहाँ पे. So this kind of questions they are interesting to solve. आप देख रहे हो अभी पिछले 5-6 एग्जांपल्स जो है they are really good. So because you start thinking here, right? Very good. Next question. A projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap. The Cartesian equation of its path is, मतलब trajectory पूछा है. You have been just asked what is equation of trajectory. Cartesian equation मतलब equation of trajectory कैसे करेंगे? हमको पता है, क्या पता है? y equal to x tan theta minus g by 2 u square cos square theta into x square. This is what you know. Or I can write this as y equal to x tan theta is sin theta by cos theta. Minus g upon 2 u cos theta का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर. फिर मैं सिर्फ यहाँ पे u को एडजस्ट कर दूंगा. Why you will understand soon. तो y is equal to x, u sin theta is uy, u cos theta is ux minus g upon 2 u cos theta is ux का स्क्वायर into x स्क्वायर. अब ये हमको पता है u bar is nothing but ux I cap प्लस uy j cap, मतलब मेरे पास ux की वैल्यू आ गई 1 और uy की वैल्यू आ गई 2. ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा. x uy is 2 and ux is 1 minus g by 2 ux is 1 square into x square. तो मुझे मिल गया y equal to 2x minus gx square.
2x माइनस जी एक्स स्क्वायर, हाँ तो g by 2 भी है और g की वैल्यू 10 है, तो आई हैव नॉट सब्स्टिट्यूटेड g 10 by 2 x स्क्वायर, ओके, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर है क्या, 2x माइनस 5x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने u बार को ux i कैप प्लस uy j कैप लिखा, ux मिल गया, uy मिल गया, हमको ऑलरेडी पता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, तो tan को लिखा sin अपॉन cos, u को एडजस्ट कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया पहले टर्म में, तो ऊपर बन गया u sin थीटा, नीचे आ गया u cos थीटा, u sin थीटा इज ui, u cos थीटा इज ux, नीचे ऑलरेडी u cos थीटा का स्क्वायर था सेकेंड टर्म में, मतलब ux का स्क्वायर था, बस ui और ux की वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो, g की वैल्यू डालो, यू गेट 2x माइनस 5x स्क्वायर। इंटेंशनली मैंने इस इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं सो दैट यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ये जानबूझ के इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं सो दैट यू रिमेंबर ऑल दिस क्वेश्चंस, all these equations. Basically this equation is important, right? So this marks the end of first set of projectile, फर्स्ट ही खत्म हुआ है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में we'll go little ahead in theory, that is important because it will be a little higher level, and then we will solve questions on those particular higher level theory. So we'll stop here.